العالمین کے ہیں یہ العالمین اشہر علم و عمل کا پیکر ہر ایک نظر پہ ظاہر ممتاز کے ہیں جوہر فردا کا جس نے ڈھونڈا سایہ ہے کیا گھنیرا علم و عمل کا جو ہے ایک گل فشا سویرا. ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی. الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل خان کی صدارت میں الامین ایجوکیشنل کیمپس کولار کے زیر اہتمام گریجویشن ڈے پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر الامین ایسی اراکین گلبرگہ سے محمد ضیاء الدین، بدر سے سید محبوب علی، ابراہیم خان افضل، ظفر اللہ خان، یوسف خان اسلم، سید احمد، ثاقب اللہ شریف، پیر پاشا کمال، سید مجاہد، بدر سے نور الاسلام، گلبرگہ سے محمد عبدالسعید، محمد نیاز آرٹیو شریک رہے. پروگرام کے مہمان خاص کولار شہر کا قدیم ادارہ انجمن اسلامیہ کے صدر ضمیر احمد، اسی طرح کولار بلدیہ کونسلر صادق جعفر عرف صاحب، دیگر شہریان کولار مہمان خصوصی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ الامین ڈاکٹر ممتاز احمد خان کولار میں آج گریجویشن ڈے سیلیبریشن کیا جا رہا ہے. تقریباً 70 اسٹوڈنٹس جو گریجویٹ ہوئے ہیں ان کو اس فنکشن میں آنر کیا گیا ہے. ہمارے کولار کے ایم ایل اے صاحب چیف گیسٹ ہیں اور انجمن کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو بھی گیسٹ آف آنر بلایا گیا ہے. تو ماشاء اللہ یہ 50 سال سے زیادہ کا پرانا ادارہ ہے اور بہت سے بچے جو ہے یہاں سے گریجویٹ ہو کے نکل گئے ہیں. تو ایسے پروگرام کرنے سے دوسرے بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پی یو سی پڑھ رہے ہیں اور ڈگری کے جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ آج نیکسٹ ہمیں بھی اچھا پڑھ کے جس دن ہم ڈگری پاس کریں گے تو ہم کو بھی اس طرح کا آنر دیا جائے گا اور ہم کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا. تو ایسے پروگرام کرنے سے یہ لوگوں کو ایک خوشی ملتی ہے، ایک ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. تو یہ پروگرام کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت کا شکر احسان ہے کہ الامین ادارہ جو ہے ہمارے قوم کی شان ہے. اس موقع پر ڈاکٹر صاحب کو یاد کرے بغیر رہ نہیں سکتے. ناظرین اکرام، کولار الامین ڈگری کالج او پی او سی گریجویشن ڈے پروگرام کو چیئرمین جناب عمر اسماعیل خان کی صدارت میں شاندار طریقے سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے منایا گیا. شہوار انجم نے نظامت کے فرائض انجام دیے اور سالانہ رپورٹ پیش کی. شمیم سلمہ پرنسپل الامین ڈگری کالج نے استقبال کیا. نازیہ تبسم نے شکریہ ادا کیا. اردو لیکچرر الامین محمد کلیم اللہ شاد اردو کی بہترین الفاظ کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا. الامین پی او کالج کی پرنسپل محسنہ بیگم اور الامین ہائر پرائمری اسکول کے میر معلم جابر احمد دیگر اساتذہ کرام نے اس پروگرام کا بھرپور ساتھ دیا. نبی کا ذکر اطہر ہے جو ہر دم گنگناتی ہوں. نبی کا ذکر اطہر ہے جو ہر دم گنگناتی ہوں. As we all know that today we are gathered here in a graduation ceremony, an event that makes a significant moment of
for all of us. So, first of all, I would like to congratulate all my graduates on this special occasion. Congratulations all. Minister to felicitate our chairman. So, I request our guest of honor to felicitate our. नाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान का मारूफ इदारा और कर्नाटक के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा करने वाला यह इदारा अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी बानिए अलामीन मरहूम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान की मेहनतों व काविशों का नतीजा है। पिछले 50 सालों से ये इदारा कायम है। डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के विसाल के बाद ये इदारा बस्ते बचाए मरहूम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के फर्जंद उमर इस्माइल खान के हाथों आया है। अब इस अलामीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान हैं, जिनके आने के बाद अलामीन कुछ तब्दीलियों के साथ कॉलेज और स्कूल तालीमी तरक्की के मैदान में तरक्की होते हुए नजर आ रहा है। अलामीन चेयरमैन उमर इस्माइल खान के साथ काफ़ी देर गए सदाए हिंद उर्दू की बातचीत के बाद बदलते हालात के साथ अलामीन को लेकर उमर इस्माइल खान तालीमी तरक्की के मैदान में काफ़ी तगदू होते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा हालात के पेश नज़र नई नस्लों में तालीम को आम करने, खासकर अक़लियती तबका के बच्चों में तालीम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं उमर इस्माइल खान। इस साल 2024 को कोलार अलामीन एजुकेशनल कैंपस 83 तलबा और तालिबात ने डिग्री हासिल की। उमर इस्माइल खान ने इन तलबा और तालिबात की मेहनतों को ऐसे ही जाने नहीं दिया, बल्कि इन तलबा और तालिबात के हौसला अफजाई के लिए ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम इनेकाद करके तालीम का माहौल आम किया। तो ऐसे प्रोग्राम करने से दूसरे बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, पीयूसी पढ़ रहे हैं और डिग्री के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनका हौसला बढ़ता है। उनको खुशी होती है कि आज नेक्स्ट हमें भी अच्छा पढ़ के जिस दिन हम डिग्री पास करेंगे तो हमको भी इस तरह का ऑनर दिया जाएगा और हमको भी रिकग्नाइज़ किया जाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम करने से ये लोगों को एक खुशी मिलती है, एक उनका हौसला बढ़ता है। तो ये प्रोग्राम करना ज़रूरी है और हमें बहुत खुशी है कि हम अलामीन बेंगलोर से जो है अलामीन मेन सोसाइटी हेड ऑफिस उधर है, वहाँ से यहाँ हमारी पूरी ईसी मेंबर्स को बुला के इधर आए हैं। वो भी देखते हैं, हमारे गुलबर्गा के टीम मेंबर्स, बिदर के टीम मेंबर्स, वो भी देखते हैं कि एजुकेशन में क्या काम हो रहा है और बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए क्या प्रोग्राम्स करना चाहिए, वो उनसे उनको भी एक सीखते हैं और उनके इलाक़ों में भी जाके ऐसे प्रोग्राम करते हैं। तो ये बहुत खुशी का मौका है कि 70 बच्चे ग्रेजुएट बने हैं और उसमें यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर भी 2 बच्चे हैं। उनकी भी तफसील आपको बाद में बताई जाएगी इंशाल्लाह। आपकी सरपरस्ती आने के बाद में कुछ तब्दीलात भी आए हैं, तो इस तरह आगे मुस्तकबिल में तलबा और कॉलेजेस की तरक्की के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं वालिदैन को? जी, जो मेरे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान 50 साल पहले 1972 में कोलार में ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन रखे। तो 50 साल की खिदमत में सब लोग शामिल रहे हैं माशाल्लाह। बिल्डिंग बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ और काम चलता है। अब तकरीबन इस बार जब हमें अलामीन में जो सोसाइटी में चेयरमैन बन के आया हूँ और मैं और मेरी टीम का साथ होने से बहुत कुछ काम इधर हुआ है। ये कोलार डिस्ट्रिक्ट्स थोड़ा निगलेक्ट हो गए थे, अब फिर जो है उनसे ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, स्टाफ की तरफ नज़र किए हैं और जो भी चीज़ करना है ज़रूरी है एक इदारे को अच्छे अंदाज से चलाने के लिए, वो सब काम हो रहा है। और ख़ासतर मेरी तवज्जो सिटी के अंदर माशाल्लाह इदारे अच्छे चल रहे हैं, उनका माहौल अलग है, वो उनके स्टाफ प्रिंसिपल्स अलग हैं, स्टाफ अलग हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ज़्यादा तवज्जो मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा जो है सफ़र ज़्यादा है, हमारे लोगों के साथ ज़्यादा विज़िट्स कर रहा हूँ ताकि डिस्ट्रिक्ट्स में अलामीन इंस्टीट्यूशंस और फिर से तरक्की पे आ जाए। क्या थी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की यहाँ पर आकर उन्होंने इस तरह का बड़ा काम बन गया जो तालीमी मैदान में काम कर रहा है सलामीन? ये वो क्या है बोलने होता है माशाल्लाह। ये टिपू सुल्तान की जो निस्बत है, अब्बा को जो है पहले से वो टिपू सुल्तान से बहुत निस्बत थी और कुछ हमेशा जो है शहीद टिपू सुल्तान साहब, हज़रत शहीद टिपू सुल्तान, ऐसा प्रोग्राम, उनका लेक्चर, उनके नाम से लेक्चर। जो अलामीन मेन कैंपस में मस्जिद है वो भी हज़रत टिपू सुल्तान के नाम से ही है। अब्बा वालिद साहब को क्या मोहब्बत थी वो टिपू सुल्तान से मालूम नहीं, कि हर वक्त जो है कि कहीं भी गए तो उनका नाम से ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जो है वो शायद अल्लाह की कोई मर्ज़ी थी
जो उनकी मोहब्बत है वो टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कि यहाँ कोलार में आए और एक काम हुआ। और बिल्कुल ऐसी जगह हुआ है कि जो वफ़ की ज़मीन है, उसके बीच में वफ़ की लैंड है, ये तरफ अलमीन का लैंड है, ये तरफ अलमीन का लैंड है। ऐसा एक बड़ा अजीब नज़राना इधर देखे तो कि एक बड़ी खिदमत का मौका हुआ है और काम अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पैगाम देना चाहते हैं? एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। माँ बाप जो है एजुकेशन, हर बच्चे को एजुकेट करना है। एजुकेशन से बहुत तरक्की है। अब माशाल्लाह अब हालात भी हिंदुस्तान के सुधर रहे हैं और हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है कांग्रेस की है, इससे माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप भी ज़्यादा मिल रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी हो रही है। इसलिए हर माँ बाप अपने बच्चों को पूरी कोशिश करना कि कॉलेजेस में जमें और एजुकेशन हासिल करें। इसके बाद जो है द स्काई इज़ द लिमिट बोलते हैं। जो भी बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लेता है वो आउट ऑफ इंडिया भी जा सकता है और भी पढ़ सकता है। तो एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हर मुसलमान माँ बाप को अपने बच्चों को देना चाहिए। आस्था अक़लियतों के लिए जो बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनको फीस नहीं मिल सकते, इनके लिए कोई अलामीन से मुहैया हो सकता है? माशाल्लाह अलमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट है, अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी है, उससे बहुत कुछ हम मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ज़्यादातर मेरा वक्त मेरे ऑफिस में जो बैठते हैं ज़्यादातर इसी मसले से लोग आते हैं और गरीब आते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में मिलते हैं। मगर मुझे जान के बहुत खुशी है और देख के खुशी है कि गरीब से गरीब हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। कुछ ना कुछ तकलीफ़ करता है, हाथां पाँव मारता है, परेशान होता है। हर इदारों में क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन दे, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन दे, हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब माँ बाप पढ़ा रहे हैं और कोशिश करके पढ़ा रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही चलता रहा तो हमारे कौम के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाल्लाह। सर, यहाँ जिस तरह आला तालीम के विषय में जैसे ग्रेजुएशन दे रहे हैं, ग्रेजुएशन जो बच्चा कितने बच्चे यहाँ से पाले? आज के फंक्शन में 70 बच्चों को जो ग्रेजुएट्स हैं उनको इस फंक्शन में उनका इजाज़ दे रहे हैं, इनको कर रहे हैं, उनको ऑनर किया जा रहा है। और कई साल से कितने बच्चे ग्रेजुएट हैं, वो 50 साल में कितने बच्चे ग्रेजुएट हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आज का जो फंक्शन है 70 बच्चों को ऑनर कर रहे हैं। अपना खास इंटरव्यू दे करके जो है ग्रामीण कॉलेज के ताल्लुक से बहुत सारी खुसूसी बातें। जज़ाकल्लाह इम्तियाज़ भाई, आपके भी बहुत शुक्र। जब भी हम बुलाते हैं आप फ़ौरन आ जाते हैं और जहाँ भी कौम के इदारे हैं, मसले हैं, आप पहुँच जाते हैं हम लोगों को न्यूज़ पहुँचाने के लिए। आपका भी बहुत बड़ा जज़ाकल्लाह खैर। तालीम के फील्ड में बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर हैं। ऐसा समझिए अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने तालीम के लिए, इस कौम के लिए सर्व किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला करवट उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। इसी उन्हीं के नक्श कदम पर आज उनके फर्जंद उमर साहब आकर हैं, यहाँ मौजूद हैं, उसी रास्ते पे चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सभी को साथ लेकर चलने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी मदद करे और इस इदारे को और आगे ले कर जाए। सर, जिस तरह डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान मरहूम के विसाल के बाद में उनके फर्जंद जनाब उमर इस्माइल खान साहब आने के बाद कुछ तब्दीलियाँ देखी, जिस तरह आप क्या देखें सर? सबसे पहले अब कोलार का ही ले लिए मसला। पहले अलमीन से अंजुमन के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, बीच में थोड़े दूरी आ गई। मैंने इस्माइल साहब से भी मिला था, चेयरमैन साहब से। जब मैंने हालात पर रोशनी डाली तो उन्होंने वादा किया कि नहीं, इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम सब मिलकर इस इदारे को आगे ले जाएंगे। हमने भी उम्मीद है इंशाअल्लाह हम भी साथ इनके रहकर इस इदारे को कामयाब करेंगे। जिस तरह उमर इस्माइल साहब चेयरमैन होने के बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, ऐसा है अलामीन एजुकेशनल और कॉलेज में, कोलार के इस कॉलेज में भी, क्या बोलते इसके बारे में? माशाल्लाह सर ने बहुत मेहनत की है अलमीन इंस्टीट्यूट के वास्ते और हमारे वास्ते स्कॉलरशिप्स के वास्ते बहुत कुछ इंतजाम किए हैं और जो पढ़ाई में फर्स्ट आते हैं उनके लिए बहुत से कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और स्पोर्ट्स भी रखा हुआ है। बहुत कुछ अच्छी चीज़ें इन्वेंट किए हैं अलमीन इंस्टीट्यूट के वास्ते।
جو پڑھ رہے ہیں ان کو اور بھی سپورٹ کر رہے ہیں، گائیڈنس مل رہا ہے بہت اچھی طرح سے، اور یہاں صرف ایجوکیشن ہی نہیں مل رہی ہے بلکہ یہ میموریز بھی بہت دیے جا رہی ہیں، اور ہم یہ میموریز کو بہت یاد کریں گے، اور ہم نے دوستیں بہت بنائے ہیں، اور ماشاءاللہ انسٹیٹیوٹ میں ٹیچرس ہی نہیں سب کچھ بہت اچھے لوگ ہیں، یہاں ایجوکیشن ہی نہیں سب کچھ کیا جاتا ہے، کریکولر ایکٹیویٹیز میں سپورٹ کیا جاتا ہے، اور اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، سپورٹ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ الحمدللہ ایسے کئی پروگرام ہمارے پاس ہو چکے ہیں، اور میں تمام بچوں کو مبارکبادی دینا چاہوں گا کہ اس ادارے میں آ کر انہوں نے اپنی قسمتوں کو بنایا، اپنی قسمتوں کو چمکایا، اور یہ جب آگے کی زندگی اگلی پڑھائی کے لیے جائیں گے اور یا پھر نوکریوں میں جائیں گے، کمائی کے لیے جائیں گے، یہ ہمیشہ ترقی کی طرف جو اچھائیاں انہوں نے سیکھی ہے اس پر گامزن رہیں، اور ہر برائی سے بچتے ہوئے آنے والی زندگی میں اچھوں کی صحبت رکھیں اور اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر ترقی کریں، اور یہ ادارے کا اور اپنے والدین کا نام روشن فرمائیں، یا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ بنے رہیں، ایک مثال بنے رہیں کہ زندگی کیسی ہوتی ہے، اور آنے والی نسلوں کو یہ آگاہ کرتے رہیں کہ تعلیم سے ترقی کیا ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرنے سے آدمی ترقی کس طرح سے کرتا ہے، اور یہ آنے والی نسل کے لیے ایک تعلیمی رہنمائی کا ذریعہ بن کر اپنی زندگی بسر کریں۔ سر، عمر اسماعیل خان صاحب کے تعلق سے آپ کے کیا خیال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا ایک بڑا انعام ہے اس امت کے لیے، جو کام ان کے والد محترم بانی الامین ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے جس کام کو شروع کیا، الحمدللہ اس کام کو آگے بڑھانے میں، اس کی ترقی کرنے میں اور اس میں چار چاند لگانے میں وہ اپنی کوشش میں مکمل کوشش کر رہے ہیں، مکمل ان کی کوششیں جاری ہیں، اور جو لوگ ان کے والد محترم کے ساتھ رہے ان کو ساتھ لے کر یہ بہت کام کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے کہ رب کائنات ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں نظر بد سے بچائے، اور تمام علمی اداروں کی ترقی۔ شکریہ۔